بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس کیسے ہیں بیٹا آپ سب کو؟ رمضان کا پہلا جمعہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج بیٹا یکم میں ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پاکستان اسٹڈیز کا وہ یونٹ نمبر 3 کا لانگ کوسچن نمبر 3 ہے۔ تو یونٹ نمبر 3 کا لانگ کوسچن نمبر 3 یہ آپ کو آپ کی ایکسرسائز میں مل جائے گا۔ تو اس پہ دیکھتے ہیں، دو ٹاپک ہیں اس میں جو ہم نے آج دیکھنے ہیں، اس میں سطح مرتفع اور میدان، ان دونوں کو ہم نے لانگ کوسچن کے طور پہ کرنا ہے۔ اس میں بہت ساری ایم سی کیوز، شارٹ کوسچن اور آبجیکٹیو کوسچنس بھی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سطح مرتفع۔ اچھا، سطح مرتفع کیا ہوتی ہے؟ سطح مرتفع زمین کا ایسا حصہ ہوتا ہے جو کہ نہ تو پہاڑوں کی طرح بلند و بالا ہو، نہ میدان کی طرح چٹیل ہو، اور نہ جو ہے یہ لیول ہو، بلکہ یہ کہیں سے کٹا پٹا ہو، کہیں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ میدان، تھوڑا بہت اس کے اندر میدان آ جاتا ہے، کہیں گہری کھائیاں آ جاتی ہیں، کہیں تھوڑا سا جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑی سلسلے، اس طرح کی جو لینڈ ہوتی ہے اس کو ہم سطح مرتفع بولتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر دو سطح مرتفع ہیں بیسکلی، پوٹوہار اور بلوچستان۔ پوٹوہار کا جو علاقہ ہے، اگر آپ کوہستان نمک جو ہے اس کے شمال میں جاتے ہیں، دریائے جہلم اور دریائے سندھ کا جو ہے وہ اس کے درمیان کا جو ایریا سارا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سطح مرتفع پوٹوہار۔ اچھا، یہاں پر جب ایک چیز آپ کو لوکیشن سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے، جیسے کوہستان نمک ہے یا دریائے جہلم کا اس نے حوالہ دیا ہے، دریائے سندھ کا، یہ نہیں ہوتا کہ یہ بالکل ساتھ ساتھ، یہ ہمیشہ لوکیشن سمجھانے کے لیے اس کے ارد گرد جو ایک امپورٹنٹ چیز واقع ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ یہ 50 کلومیٹر بھی ہو سکتے ہیں، یہ 100 کلومیٹر کے فاصلے بھی ہو سکتے ہیں، یہ بالکل ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہماری سطح مرتفع پوٹوہار ہے، اس میں چونا ہے، کوئلہ اور معدنی تیل کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ اپنی معدنی تیل کی ضرورت کا کچھ حصہ یہاں سے پورا کرتا ہے، اور یہاں پر جو ایک امپورٹنٹ دریا ہے وہ دریائے سواں ہے، جو اپنی وادی بھی یہاں پہ بناتا ہے، جسے وادی سواں کہتے ہیں۔ سطح مرتفع پوٹوہار جو ہے اس کی سطح بے حد کٹی پٹی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ایک شارٹ سا جو ہے وہ انٹروڈکشن ہے آپ کی بک میں کہ سطح مرتفع پوٹوہار کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ سطح مرتفع کیا ہوتی ہے، کٹی پٹی زمین جو کہ پہاڑوں کی طرح بلند نہ ہو، جو کہ میدانوں کی طرح چٹیل نہ ہو، بلکہ کہیں پہ تھوڑا سا میدان، کہیں پہ گہری کھائیاں آ جائیں، کٹی پٹی جو زمین ہوتی ہے اس کو ہم سطح مرتفع بولتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسری ہماری اس میں ہے سطح مرتفع بلوچستان۔ سطح مرتفع بلوچستان جو ہے وہ کوہ سلیمان اور کیتھر کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کے مغرب میں ہے، اور یہ ناہموار اور بنجر ہے، یہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں، یہ علاقہ صحرائی خصوصیت رکھتا ہے۔ اب صحرا کیا ہوتا ہے؟ صحرا ایسا علاقہ ہوتا ہے کہ جس میں اینول رین فال جو ہے اس کا ریٹ 100 mm سے کم ہو، تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پر بارشیں کم ہوتی ہیں، اس لیے آلموسٹ اس کی جو خصوصیات ہیں وہ صحراؤں جیسی ہیں۔ اس کے جو اگر آپ نارتھ میں دیکھتے ہیں سطح مرتفع بلوچستان کے، تو اس میں کوہ چاگی ہے اور ٹوبا کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہاں پر نمکین پانی کی جھیلیں بہت ساری ہیں، قدرتی جھیلیں موجود ہیں، ان میں سب سے بڑی جو مشہور جھیل ہے وہ ہمون مشکیل ہے۔ یہ والا جو پوائنٹ ہے آپ کا یہاں پر کہ بلوچستان کے اندر سب سے بڑی نمکین پانی کی جھیل کون سی ہے؟ ہمون مشکیل۔ یہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں میدان۔ تو میدان کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے ایک وسیع کم ڈھلوان دار اور نسبتاً ہموار سطح جو ہوتی ہے اس کو میدان کہتے ہیں۔ میدان کے دو حصے ہوتے ہیں، دریائے سندھ کا بالائی میدان اور دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ اب پاکستان کے یہ دو میدان ہیں بیسیکلی، یعنی پاکستان کے اندر جتنا بھی میدان ہے آلموسٹ وہ سارے کا سارا دریائے سندھ اور اس کی جو معاون دریا ہیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو پنجاب کا آلموسٹ سارا علاقہ دریائے سندھ کا بالائی میدان ہے، اور دریائے سندھ کا جو ہے وہ ٹھٹھا تک کا جو علاقہ ہے وہ صوبہ سندھ کا، وہ دریائے سندھ کا زیریں میدان کہلاتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں دریائے سندھ کا بالائی میدان جو ہے یہ صوبہ پنجاب میں سطح مرتفع پوٹوہار سے شروع ہوتا ہے، اور جنوب کی جانب جاتے جائیں تو مٹھن کوٹ، وہاں تک جو ہے مٹھن کوٹ کے علاقے تک جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے۔ اگر کہتا ہے مٹھن کوٹ کو بنیاد بناتے ہیں تو پنجاب کے تمام دریا جو ہے وہ دریائے سندھ سے ملتے ہیں۔ مٹھن کوٹ سے اوپر پنجاب کی طرف کا سارا علاقہ جو ہے اس کو دریائے سندھ کا ہم بالائی میدان کہتے ہیں، اور مٹھن کوٹ سے نیچے صوبہ سندھ کی طرف کا جو علاقہ ہے سارے کا سارا، اس کو ہم ٹھٹھا تک سارا علاقہ جو ہے اس کو دریائے سندھ کا زیریں میدان کہتے ہیں۔
हमारा ये जो बलाई मैदान है ये शुमाल की तरफ ऊंचाई है। अब आपको पता है कि हमारे नदरन एरियाज जो हैं ये ऊंचे हैं और जनूब की तरफ, यानी जो सिंध वाला एरिया, हमारा समंदर वाला एरिया सारा वो ढलवान है। पाकिस्तान की सारी ज़मीन जो है ना वो ढलवान है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ना महसूस अंदाज में ये है। तो इसलिए हमारे सारे बड़े दरिया जो हैं वो शुमाल से जनूब की जानब आते हैं। इस मैदान के मगरब में थल का रेगिस्तान है। ये मैदान जिसे 5 दरियाओं के सराब करने की वजह से पंजाब यानी पंज आप की सरजमीन भी कहा जाता है। ज़रई नुक्ता नज़र से ये बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है। और क़याम पाकिस्तान से पहले जो मुतहदा पंजाब था वो गंदम की पैदावार के हवाले से बहुत मशहूर था। यानी जब पाकिस्तान नहीं बना था, इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा था, तो उस वक़्त जो है वो पंजाब के अंदर जो है वो गंदम बहुत ज़्यादा होती थी। तो इवन दैट कि दुनिया इसे अनाज घर कहती थी। तो इस पॉइंट को भी आपने देखना है। फिर ये अब आप इस पैराग्राफ के अंदर देख रहे हैं कि जो हमारा दरिया सिंध का बलाई मैदान है ये शुमाल की तरफ ऊंचा है। ये भी आपका एमसीक्यूज बन रहा है। फिर उसके बाद ये जो इसके मैदान के मगरब में थल का रेगिस्तान है, ये भी आपका एमसीक्यूज है, ठीक है। फिर 5 दरिया की वजह से इसका नाम पंजाब है। तो ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि दुनिया अनाजगर किसे कहती थी। तो आपको पता होना चाहिए कि मुतहद्दा पंजाब पाकिस्तान बनने से कबल जो था उसको दुनिया अनाजगर के नाम से याद करती थी। आज भी हमारा जो पंजाब है हमारे पास है, वो मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरे करने में अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि हमारा जो पंजाब और सिंध है इसके अंदर आलमोस्ट हमारा जो नहरी निज़ाम है वो दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है। तो जहाँ जहाँ तक जो है वो पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है, पानी या ज़मीनें चूँकि बहुत ज़रख़ेज़ हैं पाकिस्तान की, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो फसलों की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आ जाता है दरिया सिंध का ज़ेरी मैदान। मट्ठन कोट से अगर आप नीचे जाते हैं तो दरिया सिंध एक बड़े दरिया की शक्ल में अकेला बहता हुआ ठट्ठा तक जाता है, वहाँ से डेल्टा में तकसीम होकर बहरा अरब बनाता है। अभी आप लास्ट लाइन में देखें, यहाँ पे आपको एक स्केयर की शेप नज़र आ रही है, एक्चुअली ये डेल्टा है। तो यानी ये देखिए ऊपर से एक चीज़ है, ये आगे आके 2 चीज़ों में तकसीम होगी, फिर आगे ये जो कॉर्नर है ये मज़ीद आगे 2 में तकसीम हो जाएगा, ये जो शाख है ये मज़ीद। तो जो दरियाए सिंध है ये भी आगे जाके छोटी-छोटी शाखों में ब्रांचेस में तकसीम हो जाता है, तो इसलिए इसको डेल्टाई इलाका इसका सारा फिर ये इसको कहते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह डेल्टा में तकसीम होकर बहरा अरब में जा गिरता है। इससे सारे इलाके को दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान कहते हैं। इस मैदान के जुनूब मगरिब की तरफ कोह कैथर का सिलसिला वाक़या है, और जबकि मशरिक की तरफ थर का रेगिस्तान वाक़या बलाई मैदान की तरह सिंध का ज़ेरी मैदान भी बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। ये अगेती सब्जियों और फलों की पैदावार के हवाले से बड़ी शोहरत रखता है। आपाशी ज़्यादातर नहरों से होती है, लेकिन नहरी पानी की कमी है जिसे पूरा करने के लिए ट्यूबवेल भी नस्ब किए गए हैं। तो ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो खारा है, इसलिए बलाई मैदान के मुकाबले में यहाँ पर जो है वो पैदावार काफ़ी कम है। पानी की कमी है, सेम थोर इसके जो है वो इम्पोर्टेंट मसाइल हैं। इसके अलावा दरिया सिंध का जो डेल्टाई इलाका है वो ठट्ठा से लेकर बहेरा अरब यानी हमारा जो कराची वाला समंदर है वहाँ तक फैला हुआ। यहाँ दरिया की रफ्तार सुस्त हो जाती है और समंदर में गिरने से पहले ये दरिया कई शाखों में तकसीम होकर डेल्टा बनाता है। डेल्टा मैंने आपको पहले बता दिया कि डेल्टा किस तरीके से बनता है। तो इस तरीके से ये सारा एरिया जो है इसको डेल्टाई इलाका कहलाते हैं। बेटा ये जो आपके 2 पॉइंट हैं ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बहुत आसान सा टॉपिक है। इस टॉपिक के हवाले से कि दरिया सिंध का जो ज़ेरी मैदान है या बलाई मैदान है या सतह मुतफ़ा क्या होती हैं, तो इसके हवाले से हम जो है वो मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट्री भी दिखाऊंगी। ये बेटा आज मैंने वीडियो आपके लिए सेट की है, उसमें वो आपको डिटेल से बताएगी कि सतह मुतफ़ा क्या होती है और ये पाकिस्तान के अंदर सतह मुतफ़ा पोटोहार और बलूचिस्तान लेकिन पहाड़ की तरह इसकी चोटी नहीं होती और इसकी जमीन काबिल काश्त नहीं होती है। 2 पहाड़ों के दरमियान भी हो सकती है और वैसे भी हो सकती है, यानी जो समुंदर है उसकी सतह पे मैदान होते हैं और पहाड़ियां और पहाड़ ऊंचे होते हैं। तो ऐसे इलाका जात पाकिस्तान के 2 हिस्सों में पाए जाते हैं, सतह मुर्तफा पोटहार और सतह मुर्तफा बलूचिस्तान। तो सबसे पहले हम सतह मुर्तफा पोटहार के बारे में बात करते हैं। ये सतह मुर्तफा पोटहार जो है दरिया जेहलम और दरिया सिंध के दरमियान शिमाली हिस्सा में सतह मुर्तफा
कोतवाल, जेहलम, रावलपिंडी और अटक के अजला शामिल है। कोतवाल की सतह जमीन बरसाती नालों और बारिशों की वजह से कटी फटी है, इसलिए ये जमीन काश्त के लिए अच्छी नहीं है। अलबत्ता इन इलाका जात से मादनी तेल, गैस, नमक और दीगर मादनियात मिलती है। सतह मुस्तफा कोतवाल के जनूब में कोहिस्तान नमक का पहाड़ी सिलसिला वाक़या है। ये दरिया जेहलम के मगरबी किनारे से शुरू होकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला बल्खी तक फैला हुआ है। ये कम बुलंद पहाड़ी सिलसिला है। ये पहाड़ी सिलसिला जेहलम, कुशाब और मियां वाली वगैरह के इजला पर मुश्तमिल है। आप नक्शे में बखूबी देख सकते हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में नमक की कान ख्योड़ा साल्ट माइन वाक़या है। ख्योड़ा साल्ट माइन जो है वो तारीखी वो है कान, और ये सिकंदर आजम और राजा पोरस के माबैन लड़ी की जंग के दरमियान दरियाफ्त हुई और इसे अंग्रेज माइनिंग इंजीनियर डॉक्टर वॉट ने डेवलप किया। कि आप ये ख्योड़ा माइन के अंदरूनी मनाजर देख रहे हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत चीजें बनाई गई हैं नमक से। आपको कभी मौका मिले तो आप इसकी सैर करने जरूर जाएं। अब हम सतह मुर्तफा बलूचिस्तान के बारे में बात करते हैं। सतह मुर्तफा बलूचिस्तान जो है वो कोह सुलेमान और कोह कीरथाल के मगरिब की तरफ वाक़या है। सूबा बलूचिस्तान में है ये। इसकी सतह रेतली और पथरीली है, यानी ये बंजर है, रेत और पत्थर है। यहाँ पे कुछ पहाड़ियों का ये सिलसिला शुमाल मशरिक से जनूब मगरिब की तरफ फैला हुआ है। ये इलाका मादनी एतबार से बहुत अहम है। मादनियात वो कीमती धातें हैं जो जमीन के अंदर से निकलती हैं और यहाँ से तांबा, गंधक, कुदरती गैस और कोयला निकाला जाता है। आपको पता है कि सुई गैस बलूचिस्तान में, सुई वो जगह है जहाँ से पहली दफा गैस निकली थी, उसी के नाम है पूरी पाकिस्तान में इसे सुई गैस कहा जाता है। इस सतह मुस्तफा के वस्त में नमकीन पानी की एक झील है जिसमें चंद नदी नाले आकर गिरते हैं। आपको पता है झील ऐसे इलाके को कहते हैं जो चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ हो। यहाँ की आबो हवा गर्मियों में गर्म खुश्क और सर्दियों में सर्द खुश्क है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, यानी बारिश कम होती है तो सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। ताहम जहाँ पानी दस्तयाब है वहाँ फलों के बागात लगाए जाते हैं, अंगूर, सेब, अनार। चश्मों के पानी को कारेज, ढका हुआ खाल के जरिए बागों और खेतों को दिया जाता है। ये एक जो है वो बहुत खूबसूरत चीज है कि पहाड़ों के बीच में खोदकर खाले और नाले बनाए गए हैं। इस इलाके में ज़ियारत जैसा सेहत अफजा मुकाम है। तो प्यारे बच्चों, अपनी तालीम तवज्जो से हासिल करना आपका मकसद होना चाहिए। स्कूल में तवज्जो से पढ़ना, उस्ताद की इज्जत करना और ये अपने ऊपर लाजिम कर ले। अच्छा बेटा, ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया था प्लेटोस क्या होते हैं और मैदान क्या होते हैं, तो मैंने इसीलिए आपको जो है वो एक बर्ड आई व्यू के तौर पर आपकी जो बुक के अंदर जो चीज़ें थी वो मैंने आपसे पहले डिस्कस करनी, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके लिए ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई थी। इसमें उसने सतह मुर्तफा के बारे में आपको डिटेल और सारी चीज़ें जो है वो पिक्टोरियल फॉर्म में आप लोगों ने देख ली हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि मैदान के ऊपर जो हमारी वीडियो होगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं आपको दिखाऊंगी ना जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, उसके अंदर ही जो है वो एक हिस्सा उसका ऐड कर दूंगी। तो इस तरीके से आपको ये भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के जो मैदान हैं वो किस तरह और कितने ज़रखेज़ हैं। तो सतह मुर्तफा के बारे में आपको उम्मीद है कि अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐसी थी जो आपकी बुक के अंदर नहीं थी, एक्स्ट्रा थी, तो आपने वो नहीं करनी। आपने सिर्फ अपनी बुक के हवाले से जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। लेकिन ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इस तरह की और आपके इंटरेस्ट के लिए ऐसी वीडियोस जो है वो लेक्चर में डालती रहती हूँ, ताकि आप लोग जो है वो इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ सकें। तो उम्मीद है बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआओं में सब याद रखिएगा, जुम्मतुल मुबारक है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस कोरोना जैसी वबा से जो है वो महफूज रखे और हमें जल्द से जल्द इससे निजात दे। तो रमज़ानुल मुबारक के दौरान अपने गिरदो नवाह में जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल रखें। बेटा अल्लाह ताला हकूक अल्लाह तो शायद माफ़ कर दे, लेकिन हकूकुल इबाद हमें किसी सूरत माफ़ नहीं करेगा।
تو اس لیے جو غریب اور نادار لوگ ہیں جو کہ جن کی خوشیاں ہمارے ساتھ جڑی ہیں، تو آپ رمضان کے اندر ان کا خیال ضرور رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔